Yes. 201. Okay, so the next topic is parameterized constructors. Let's understand what does it means by. Before that, let me take a quick revision. A very quick revision that we started with the topic as methods. Okay. So I told you one thing, that there are two different types of methods. The first one is procedures. The second one is function. And by now, probably every one of you have understand कि एक procedure क्या होता है, एक function क्या होता है. वैसे बहुत simple सा meaning है. Every such method, first of all, both of them are methods. और method क्या है, जिसको हम इस तरह से represent करते हैं, जिसके आगे हम brackets use करते हैं. That is what a methods. ठीक है, that is what a method. देखिए, procedures वो method होती है that actually doesn't returns anything to the calling environment. Someone who has called this kind of method, it doesn't returns anything. And that is the reason the return type of every procedure is always void. Void means nothing. On the other hand, functions are basically that kind of method which returns something. Something in the sense it could be anything. It could be anything. It could be an integer value. It could be a string value. It could be a value of some of the object type, जैसे एक account record, जैसे एक contact record, है ना. तो we are also going to use the functions. Mostly we are going to use the functions only. अभी से बताता हूँ. जब हम आगे when we go somewhere around the integration और उसके टाइप के जब प्रोग्रामिंग पे आएंगे ना, so we will be using functions. Even in the asynchronous programming नाम का एक टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आगे चल के. That time also we will be using function. तो कैसे है तुमको तब समझ में आ जाएगा. अभी you need to just concentrate on the procedures. Procedures are that type of method which doesn't returns anything to the calling environment. It's a kind of method which doesn't returns anything to the calling environment, and so the return type is always void. Okay. Now procedures are two types, non-parameterized and parameterized. We completed this part, non-parameterized procedure. उससे मैंने आपको दो चीजें बताई. ठीक है. Whenever we write down a method, whenever we create a method like this inside a class, see, this methods are always a child component to the class. Always remember this. आप इसको जैसे आपने डिफाइन किया है ना, public void create contact, this you could always define inside a class. If you try to define it like this, आप यहाँ पे कहीं अगर डिफाइन करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको एरर मिलेगा. Because the parent component should always be a class. So your methods are always a child component. तो अब ये जो मेथड मैंने क्रिएट किया है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड. इसका एक्सेस स्पेसिफायर जिसको हम स्कोप बोलते हैं वो क्या है, पब्लिक. ठीक है. अच्छा, एक चीज समझो, अगर आपका क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है तो ऐसे जरूरी नहीं होता कि मेथड्स भी आपकी पब्लिक हो. मैंने एक जगह हमने एक चीज पढ़ी, एक छोटा सा रिवीजन आज मैं सोच रहा हूँ कि जरूरी इस बारे में. एक मोमेंट था जहां पे हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर डिस्कस कर रहे थे, और मैंने कहा था देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड ग्लोबल. ठीक है. तो मैं जरा सा एक बार वो टॉपिक लेके आता हूं, और मैं कुछ एक्चुअली किसी चीज पे डिस्कशन करना चाहता हूं आप लोगों से यहाँ पे. हाँ, देखिए, एक पॉइंट था, एक जगह थी जहां पे हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर डिस्कस कर रहे थे, और आपको मैंने बताया कि देखिए वैसे एक्सेस स्पेसिफायर 4 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड देन पब्लिक एंड देन प्रोटेक्टेड और ग्लोबल. तो आज जैसे कि आप क्लास डिफाइन कर रहे हो, आज आप लोग क्लासेस बनाना सीख लिया आप लोगों ने ना, यू ऑल्सो हैव बीन क्रिएटिंग द मेथड्स इनसाइड द क्लास. I mean, with the yesterday's or day before yesterday's like session, we understand like how to create the class and then how to create the methods inside the class. तो दोनों जगह पे क्लासेस को भी एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ता है. एट द सेम टाइम एक्सेस स्पेसिफायर्स आर आल्सो फॉर द मेथड्स. क्लास के अंदर जो मेथड्स होती है उनको भी एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ता है. अब देखो, जहां तक बात क्लास की है, ध्यान से सुनो, जहां तक बात क्लास की है कि इफ आई एम गिविंग एक्सेस स्पेसिफायर टू द क्लास, अगर मैं क्लास को एक्सेस स्पेसिफायर दे रहा हूं, व्हाट कुड आई गिव, क्लास को मैं प्राइवेट बना सकता हूं, प्राइवेट. ठीक है. जब हम टेस्ट क्लासेस लिखेंगे दैट टाइम वी विल बी मेकिंग क्लास एज अ प्राइवेट. क्लास को हम पब्लिक बना, और नॉर्मली हम पब्लिक ही बना रहे हैं.
ठीक है, क्लास को इवन वी कुड मेक इट ग्लोबल whenever we do the integration, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे और that time whenever we are writing, whenever we are writing the codes, that time we make the class as to be the global. But class को precisely आप protected नहीं बना सकते. This is the only access specifier you cannot give it to the class. A class could be public, a class could be private, a class could also be global. So these are the three access specifier. I could use this in front of the name of a class. A class could be the public, class could also be a private, and class could also be global. Class access specifier couldn't be what? Protected. A class could not be a protected. Class could not have a protected access specifier. वेयर इज द मेथड इनसाइड द क्लास. अब चलो, अब ये तो क्लास की बात हो गई. अब हम मेथड्स भी क्रिएट करना जान चुके हैं. वी नो हाउ टू क्रिएट द मेथड्स. मेथड्स आर व्हाट? दीज आर द चाइल्ड कंपोनेंट इनसाइड द क्लास. मेथड्स आर आल्सो द मेंबर ऑफ क्लास. एक क्लास में जिस तरह से आपने वेरिएबल्स डिफाइन करना सीखा, उसी तरह अगर आप कोई मेथड अगर क्लास के अंदर लाते हो, है ना, इफ यू क्रिएट सम मेथड, दैट इज आल्सो अ मेंबर ऑफ क्लास. तो क्लास के मेंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक मेथड क्या क्या हो सकती है? मेथड कुड बी प्राइवेट, मेथड कुड बी पब्लिक, मेथड कुड आल्सो बी प्रोटेक्टेड एंड मेथड कुड आल्सो बी ग्लोबल. तो प्रोटेक्टेड जो एक्सेस स्पेसिफायर है, प्रोटेक्टेड जो एक्सेस स्पेसिफायर है, दिस कुड ओनली बी यूज विद द मेथड्स, with the members of the class. Protected members of the class could be protected. Members of the class could be protected. But class itself cannot be protected. Class कभी भी protected नहीं हो सकती. Class क्या हो सकती? Public. Class क्या हो सकती? Private. Class could also be global. Class क्या नहीं हो सकती? Protected. और जो मेंबर्स की बात करते हैं हम, कि जो हम उसके अंदर जो भी मेथड डिफाइन करें, तो मेथड सब कुछ हो सकता है. मेथड पब्लिक हो सकता है, मेथड प्राइवेट हो सकती है, मेथड कुड आल्सो बी प्रोटेक्टेड एंड मेथड कुड आल्सो बी ग्लोबल. ठीक है. तो अगर आप प्रोटेक्टेड मेथड, किसी मेथड को प्रोटेक्टेड बनाते हो, तो उस क्लास, यहाँ पर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है, कि उसका कंसेप्ट सीधा साधा ये है कि फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू दैट. ये मेरी, दिस इज माय पेरेंट क्लास फॉर एग्जांपल, अज्यूम दिस. और इस पेरेंट क्लास के अंदर मेरा एक चाइल्ड क्लास है, एक और चाइल्ड क्लास है. ठीक है. तो यहां पर अगर ड्यूरिंग दिस, अगर यहां पर मैंने एक मेथड बनाई है, ठीक है, और उस मेथड को मैंने, इफ आई डिफाइन दिस मेथड एज द प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये एक मेथड है यहाँ पे, और उस मेथड को मैंने प्रोटेक्टेड बना रखा है. फॉर एग्जांपल एक मेथड है जिसको मैंने प्रोटेक्टेड बनाया, एक मेथड है गो फर्स्ट नाम की. नाउ दिस मेथड कुड बी एक्सेस ओवर हियर, दिस मेथड कुड आल्सो बी एक्सेस ओवर हियर. मतलब दिस इज क्लास C1, ठीक है, और ये उसका चाइल्ड है C1-1, ठीक है, ये उसका चाइल्ड है, एंड C1 C-1 2, ये दो चाइल्ड्स हैं उसके. तो ये दोनों चाइल्ड, बिकॉज दे आर डिराइव्ड क्लासेस, ये दिस इज समथिंग कॉल्ड एज पेरेंट क्लास, दीज आर समथिंग कॉल्ड एज डिराइव्ड क्लास और द चाइल्ड क्लासेस. तो ये जो प्रोटेक्टेड मेथड है, ये इसके अंदर यूज हो सकती है. लेकिन इफ देयर इज अ क्लास, यहां पर अगर कोई क्लास है, ठीक है, और यहाँ दो मेथड है मान के चलो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि यहाँ पे आपकी दो मेथड है. फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि यहाँ पे दो मेथड्स है. एक मेथड है आपकी पब्लिक, ठीक है, और एक मेथड है प्रोटेक्टेड, और ये क्लास का नाम है C1. तो इसके अंदर जो दो क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल C2 एंड C3, और इसका नाम है C4. ठीक है. तो यहाँ पर आपकी मेथड है पब्लिक मेथड नंबर 1, मेथड प्रोटेक्टेड मेथड नंबर 2. तो ये जो मेथड है पब्लिक, ठीक है, वो इस क्लास में भी यूज हो सकती है, C1 पे भी, C2 में भी, C3 में भी और C4 में भी. क्यों? क्योंकि इसका स्कोप है पब्लिक. लेकिन ये जो मेथड है प्रोटेक्टेड नंबर 2 C1 में यूज होगा, C2 में यूज होगा, C3 में यूज होगा, C4 पे यूज नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि उसका स्कोप क्या है? प्रोटेक्टेड. ये डिफरेंस होता है पब्लिक और प्रोटेक्टेड में. ठीक है. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो बस, और कुछ. चलो वापस चलते हैं अपने डिस्कशन पे. तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, चलो हम प्रोसीजर्स के टाइप पढ़ रहे हैं, राइट. तो प्रोसीजर में दो तरह की प्रोसीजर्स होती हैं, पैरामीटराइज्ड एंड नॉन पैरामीटराइज्ड. तो नॉन पैरामीटराइज्ड प्रोसीजर्स आप देख चुके हैं, ये ऐसी प्रोसीजर्स होती है जिसके ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होता है. अब हम आते हैं पैरामीटराइज्ड प्रोसीजर्स के एग्जांपल पे. ठीक है. चलो, तो ये वो प्रोसीजर्स होती हैं जो कुछ पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करती हैं. तो बाय यूजिंग दिस फीचर वी कैन सप्लाई द इनपुट वैल्यूज टू द प्रोसीजर्स को वैल्यूज अगर सप्लाई करनी है एट द रन टाइम, है ना, एट द रन टाइम इफ यू वांटेड टू सप्लाई सम वैल्यू टू द प्रोसीजर,
तो वो कैसे देते हैं, दैट इज समथिंग व्हाट वी आर लर्निंग। तो उसमें देखिए इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, जैसे एक्सप्रेस स्पेसिफायर में पब्लिक आ गया, उसके बाद वॉइड, आप स्टैटिक भी देंगे हम यहाँ पे। स्टैटिक इसलिए देंगे ताकि उसका फायदा क्या होता है कि क्लास नेम के साथ आप डायरेक्टली प्रोसीजर नेम को कॉल कर सकते हो। और ये लास्ट लेक्चर में हमने यही सीखा है कि अगर मैं इफ आई मेक अ प्रोसीजर एज स्टैटिक वॉइड, अगर मैं किसी प्रोसीजर को, किसी मेथड को, वॉइड तो रखना ही है बिकॉज प्रोसीजर है, उसके साथ स्टैटिक कीवर्ड लगा देता हूं, तो ये जो पर्टिकुलर मेथड मैंने बनाई है इसको मैं डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ कॉल कर सकता हूं, मतलब हायरिंग मैनेजर हेल्पर डॉट क्रिएट एचआर रिकॉर्ड, ऐसा। तो उसका वो बेनिफिट मिलने के लिए वी मेक दिस मेथड एज टू बी स्टैटिक मेथड, है ना। दैट इज व्हाट द थिंग। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अलॉन्ग विद दिस आई विल यूज अ कीवर्ड, ऑलवेज आई विल यूज अ कीवर्ड, यहां से आगे तक स्टैटिक कीवर्ड में यूज करूंगा हर जगह। व्हेनेवर आई डिक्लेयर एनी मेथड आई विल डिक्लेयर द मेथड एज टू बी द स्टैटिक। If it's a procedure, then void. If it's not a procedure, function है तो यहाँ return type आता है, देख लेंगे। But anyways, whatever the method from now onwards, we will be creating, we will make every method as to be a static method. ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर तो अभी आपको बता दिया मैंने, चारों एक्सेस स्पेसिफायर लगते हैं यहाँ पे। तो इनसाइड द प्रोसीजर, ये जो ब्रैकेट रहता है अपना, इनसाइड द प्रोसीजर वी आर गोइंग टू गिव द पैरामीटर्स, लाइक पैरामीटर 1 2 3 4, एंड यू कुड गिव एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। While you are giving the parameter, उसका डेटा टाइप भी अपने को मेंशन करना पड़ता है। डेटा टाइप along with parameter, डेटा टाइप along with parameter 2, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर 3, डेटा टाइप पैरामीटर ऑफ, तो इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो बेटर इसको एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास में, तो उसके जैसे फॉर एग्जांपल ये राइट एन अपेक्स क्लास टू परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। चलिए, तो इसके लिए मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, मैथ्स ऑपरेशन हेल्पर नाम से। मैं कॉपी करता हूँ इसका नाम, and then let me create this, एक क्लास बनाता हूं और उसकी मदद से आपको समझाता हूं कि एक नॉर्मल प्रोसीजर, एक पैरामीटराइज प्रोसीजर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो लेट्स क्रिएट न्यू अपेक्स क्लास, नेम इज मैथ्स ऑपरेशन हेल्पर। चलो, तो मैंने क्लास डिफाइन किया मैथ्स ऑपरेशन हेल्पर नाम से, और what this is going to do, let me first of all यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ कि what this class is all about। ये जो यूज केस है ये कैसी यूज केस है, तो राइट इन अपेक्स प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑल सम ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, सो फॉर दिस यूज केस एक्चुअली, फॉर दिस यूज केस आई विल बी राइटिंग दिस क्लास। तो मैंने क्लास बनाई और जिसका नाम है मैथ्स ऑपरेशन हेल्पर। अब मैं इसके अंदर में सारी मेथड्स डिफाइन करता हूं वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहली मेथड पब्लिक, हर बार हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे, और मैंने बता दिया कि अब इसके बाद जितनी भी मेथड्स मैं बनाऊंगा आई विल मेक एवरी मेथड एज टू बी स्टैटिक मेथड, क्योंकि मैं डायरेक्टली कॉल करना चाहता हूं, और बिकॉज वो प्रोसीजर है, अभी हम सिर्फ प्रोसीजर ही पढ़ रहे हैं, फंक्शंस पे नहीं आए हैं। ठीक है, तो जब तक प्रोसीजर पढ़ रहे हैं तब तक वॉइड ही चलेगा। अब एक मेथड जिसका नाम है एडिशन, एक मेथड जिसका नाम है एडिशन। इसके पहले आपने ऐसा देखा था मेथड्स को, यू हैव सीन इट लाइक दिस। ये अगर मैं ऐसी कोई मेथड लिखता हूं, अगर ना इफ आई राइट इट डाउन लाइक दिस, दिस इज व्हाट अ नॉन पैरामीटराइज्ड प्रोसीजर। इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट डज अ पैरामीटर्स मीन, कि आपकी ये जो मेथड्स होती है ना, दिस मेथड दे कुड आल्सो एक्सेप्ट सम फॉर्म ऑफ इनपुट पैरामीटर्स। ये मेथड भी इनपुट पैरामीटर्स ले सकती हैं, कुछ पैरामीटर को एक्सेप्ट कर सकती हैं। ठीक है, अगर एक्सेप्ट करती हैं यहाँ कुछ मेथड, तो इस कॉल्ड एज आपकी पैरामीटराइज्ड प्रोसीजर्स बोलते हैं उसको। अब तो वो क्या है देखो, अब मैं फॉर एग्जांपल ये एडिशन की जो मेथड है, ठीक है, आई विल से कि ये जो मेथड है ये क्या करना चाहिए, इट शुड परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर्स। ठीक है, इट शुड परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इंटीजर नंबर 1, या फिर x ले लेता हूँ, इंटीजर x कॉमा इंटीजर एग्जाम्पल y। ठीक है, इंटीजर y, इंटीजर x, इंटीजर y, और काफी ठीक है। तो वेन एवर दिस मेथड विल बी कॉल्ड, अब जब भी ये मेथड कॉल होगी, ठीक है, जब भी ये मेथड कॉल होगी एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो से, जब भी ये मेथड कॉल होगी, इट विल आस्क यू टू एंटर टू इंटीजर वैल्यूज। आप दो इंटीजर वैल्यूज यहाँ पे एंटर करो। इट विल आस्क यू, वहां पर भी एक्स और वाई नजर आएगा। काम करते हैं यहाँ पे num1 और num2 ले लेता हूँ। ठीक है, वहां पर भी आपको एक्स और वाई नजर आएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग num1 एंड num2, num1 and num2. So it will ask you to enter two integer values. And what we wanted to perform, हमको इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है, रिजल्ट डिस्प्ले करना है।
तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ऐसा एक वेरिएबल इंटीजर इंटीजर है ना, आप ऐसा रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करो एंड देन यू विल से कि हाँ चलो num1 प्लस है ना num2। एक तरीका तो ये होता है। उसके बाद सिस्टम डॉट डीबग द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ two numbers equals to, here you could give in a plus result। एक तो ये तरीका होता है। बट कैसा ना एडिशन ही परफॉर्म करना है और रिजल्ट ही डिस्प्ले करना है, तो ये अननेसेसरी स्टेप्स क्यों देना अपन ने यहाँ पे, है ना, अननेसेसरी स्टेप्स क्यों देना। तो इसमें एक मैं दूसरा शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ, व्हाट एल्स वी कुड गिव, कि ये एक लाइन मतलब सेव करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। पहले भी ये बताने वाला था मैं, लेकिन फिर मैं बोला कि उस वक्त कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दैट टाइम आए मतलब वो उसी वक्त दिमाग में आ गया था मेरे, फिर मैं बोला नहीं अभी एकदम से इतना सिखाऊंगा शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो यहाँ कैसा ना मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन सिखा रहा हूँ आपको कि हम मतलब वी वांटेड टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ दीज टू नंबर। तो ऐसा एक रिजल्ट नाम का इंटीजर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना, फिर दोनों को एडिशन करके इसमें रिजल्ट स्टोर करना, फिर उसको प्रिंट करना। तो उसको आप थोड़ा सा ना ऑप्टिमाइज कर सकते हो, एक लाइन यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इट लाइक दिस, व्हाट आई कैन डू इज, व्हाट आई कैन डू इज, यहीं पर मैं num1 और num2 दे देता हूँ और ये पूरी लाइन ही हटा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा लाइन ही हटा देता मैं लाइक दिस। व्हाट आई हैव डन, क्या किया मैंने, द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू num1 का वैल्यू ब्रैकेट में प्लस num2 का वैल्यू। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या अटेम्प्ट करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल परफॉर्म द एडिशन, num1 और num2, ये जो भी नंबर्स आप सप्लाई करोगे। अब ये नंबर्स कहाँ से आएंगे, रन टाइम में आएंगे। यही तो बेनिफिट है इसका, यही तो बेनिफिट है कि आप अब यहाँ पे 10+20, 30+40, 80+90 वट एवर, दो इंटीजर वैल्यूज अब आप रन टाइम पे दे सकते हो। दैट आपने जो भी वैल्यू दी, पहला वैल्यू num1 में स्टोर होगा, दूसरा वैल्यू num2 में स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हियर है ना कंपाइलर विल फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट, है ना, वो अटेम्प्ट करेगा इसका एडिशन करने का, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिस्प्ले कर देगा। लेट्स सी द रिजल्ट। ठीक है, अब इसका बेनिफिट भी देख लो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सेव द क्लास, नाउ सी, मैं अब यहाँ पे कॉल करता हूँ, है ना, अभी मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ। सो मैथ्स हेल्पर डॉट मैथ्स डॉट सी, यहाँ जो मेथड है आपने लिखी वो अपने आप आ गई, बराबर। एंटर करो। सो इट्स आस्किंग यू टू एंटर टू नंबर्स, दो नंबर की वैल्यू एंटर करने बोल रहा है। तो पहले मैंने एंटर किया 10 फर्स्ट नंबर, और दूसरा मैं एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल 20। ठीक है, ओपन लॉग, एग्जीक्यूट एंड सी व्हाट हैपेंस। इट विल परफॉर्म द एडिशन, and display the result. The result of this number 20 plus 10 is 30, like this। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपको अलग से एक वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है रिजल्ट नाम का। ठीक है, चलो अब इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में पूरा डिस्कस करते हैं। दिस वाज फर्स्ट मेथड, लेट्स से इट्स परफॉर्मिंग द एडिशन। यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ थोड़ी सी एडिशन के लिए। नेक्स्ट लेट मी राइट डाउन द नेक्स्ट मेथड टू परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन। अगली मेथड जो है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए मेथड परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मेथड बनानी है, सॉरी, पब्लिक स्टैटिक void सेकेंड मेथड से मल्टीप्लाई। What multiplication? Again, I wanted to perform the multiplication of, for example, three integers. You know, so integer say x, comma, integer y, comma, integer z. ठीक है, so whenever this method will be called, जब भी ये मेथड कॉल होगी, it will ask you to enter three integer values, and what you wanted to perform and display, we wanted to perform and display the multiplication, like the result of say multiplication equals to plus, now in the bracket what we wanted to perform, we wanted to multiply x multiplied by y multiplied by z। ठीक है, दिस इज द मेथड। लेट मी राइट डाउन फ्यू मोर मेथड्स। ठीक है, कुछ और मेथड्स लिख देता हूँ, लाइक द मेथड फॉर एग्जांपल डिवीजन, यू नो, द मेथड फॉर द डिवीजन, ठीक है, तो पब्लिक
static and void. Public, static and void. What name of the method is, for example, division. Okay, here I would like to enter two variables only. First is integer x, the second is like integer y. Okay, these are the only two variables I would like to enter over here. Now see, understand one thing. Division जब हम perform करें, actually we are performing x divided by y. x क्या है? x is the numerator, y is the denominator, right? अब एक चीज आप समझो, you know this. The value of y should not be should not be equals to 0. अगर डिनोमिनेटर आपका 0 है, मतलब x divided by 0, anything divided by 0 is infinity. तो before we actually perform the division, हमने को ना एक provision यहाँ पे डालने का है. Before we actually attempt to perform x divided by y, we should foresee for the value of the denominator, and it should not be less than or equals to 0. It should not be less than or equal, rather I should say कि हाँ, denominator जो है आपका y, it should always be greater than 0. उसका वैल्यू जो है 0 से बड़ा ही होने को ना, हमेशा, चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे कुछ भी रहे. अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं है, 0 है या 0 से कम है, तो हमको फिर एक मैसेज प्रिंट कर देना चाहिए कि ना डिवीजन कैन नॉट बी परफॉर्म, ऐसा कुछ तो भी. तो यहाँ पे ना, इससे पहले कि मैं डिवीजन अटेम्प्ट करूं, आई विल चेक फॉर वन कंडीशन. एक कंडीशन चेक करता हूं मैं, क्या कि सेकंड वेरिएबल अपना y, द वैल्यू ऑफ y शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. y का जो वैल्यू है ना, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, एंड इफ इट इज द केस, और अगर ये ऐसा है, इफ इट इज द केस, अगर ऐसा है, देन डू दिस डिवीजन. ठीक है, देन डू दिस डिवीजन. तो इन दैट केस ओनली, इफ द y सेकंड वेरिएबल की वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन 0, देन यू परफॉर्म द डिवीजन एंड प्रिंट द रिजल्ट. तो आप यहाँ पे फिर डायरेक्ट लिखो system.debug the result of division, division, division equals to, ठीक है, डिवीजन इक्वल्स टू प्लस व्हाट, आई वांटेड टू अटेम्प्ट x डिवाइडेड बाय y, सो x डिवाइडेड बाय y, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा. बट इफ द कंडीशन फॉल्स, इफ समबडी इज ट्राइंग टू डिवाइड इट बाय 0 और लेस देन अ नंबर विद द 0, तो वी शुड आल्सो हैंडल दिस. एल्स, अगर आप कोई ऐसा करता है कि डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 या उससे कम रखता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवीजन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, रादर वी विल डिस्प्ले वन मैसेज. ओके, क्या मैसेज? डिवीजन ऑपरेशन cannot be performed. Division operation cannot be performed. ठीक है, division operation cannot be performed because this is the reason. Whatever you wanted to type, आप लिख सकते हो उसमें से, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हो गया डिवीजन का. और रिमाइंडर का भी बताता हूँ एक चीज. यहाँ पे देखो, डिवीजन पे आई गए तो एक चीज आप जानते हो ना, वेन एवर वी परफॉर्म द डिवीजन, फॉर एग्जाम्पल if this is the division, for example I am attempting 2 by 7, I am attempting this actually, or 2 by 7 बोल रहा हूँ, 7 by 2. तो इसमें कैसा कि 2 3 are 6, 2 3 are 6 है ना, माइनस करेगा तो 1 मिलेगा. this is my quotient and this is remainder, this is the remainder. So when you are performing this function, so it will actually going to give you the quotient. बट इफ यू वांटेड टू प्रिंट द रिमाइंडर प्रिंट करना है तो क्या करते हैं, तो उसके लिए फिर अपने पास एक math.mod नाम का फंक्शन होता है, राइट. तो वो फंक्शन यूज करते हैं. तो चलो वो भी ले लेते हैं, आप एग्जांपल कर ही रहे हैं तो उसको भी कर लेते हैं. तो सेकंड विल बी लाइक डिवीजन एंड प्रिंटिंग दी QUTIENT क्वेश्चंस. ठीक है, here also let me copy the same, here also division and printing the remainder. तो उसके लिए we need to use, whenever we wanted to print a remainder function, reminder the value of the remainder after division, after performing the division, we should like use the math.mod. ये ऑपरेटर नहीं है, ये फंक्शन है. बाकी आपने जितना भी यूज करा, स्लैश इज एन ऑपरेटर, एस्ट्रिक इज एन ऑपरेटर, प्लस इज एन ऑपरेटर, माइनस अगर मैं करता तो माइनस विल ऑल्सो बी एन ऑपरेटर. ठीक है, इफ आई वांटेड टू परफॉर्म एडिशन के बाद अगर मुझे सब्ट्रैक्शन लेना था, सब्ट्रैक्शन, सो आई विल गो इट लाइक दिस के पब्लिक स्टैटिक वॉइड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सब्ट्रैक्शन नाम का एक वेरिएबल वेयर आई विल एंटर 2 इंटीजर वैल्यूज, फॉर एग्जांपल इंटीजर से integer x comma integer y. ठीक है,
and here also I would like to impose one condition कि if x is greater than y, if x is greater than y, you know, this is what I want. If x is greater than y, then perform the division, perform the subtraction, otherwise not. वरना रिजल्ट माइनस में आएगा. वैसे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जस्ट चेक करने के लिए कि द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई, है ना. तो द रिजल्ट ऑफ द subtraction equals to plus 1 second. Okay, so where I was, yeah, the result of subtraction is plus. Let me now in the bracket put up like x minus y, so it's like x minus y. Okay, so this was else के लिए condition. Else if somebody is trying, you know, second number is greater than, so system dot debug, what is happening? Subtraction cannot be performed. ठीक है, like this. सो ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. और अब हम आते हैं डिवीजन में. क्वोशिएंट अपने को अगर यू नो रिमाइंडर पर्टिकुलरली इफ यू वांटेड टू प्रिंट, सो इन दैट यू नो पब्लिक static void, give the name of the function as to be, this was division, मैं इसको रिमाइंडर दे देता हूँ, रिमाइंडर. here also like you know I'll take two values like integer say x and then integer say y. अच्छा, आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो ना, वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग द डिवीजन यू नीड टू चेक फॉर दिस, यू नीड टू चेक फॉर दिस. क्या कि पहला नंबर आपका न्यूमरेटर you know should be greater, numerator should be greater than वो भी no, here you need to check it, denominator should not equals to and less than y. So for example this y, the value of the y should always be greater than 0. That's what the condition, every time whenever we are performing the division. अब वो एक अलग बात है कि अपन रिजल्ट क्या प्रिंट करना चाहते हैं, whether we wanted to print the result यानी क्वोशिएंट, द रिजल्ट के बजाय मैं इसको कर देता हूँ द क्वोशिएंट ऑफ द रिजल्ट, क्वोशिएंट ही लिख देता हूँ ना, QUOTI. तो if you wanted to if you wanted to display the quotient or you wanted to display the remainder, that's a different thing. लेकिन डिवीजन जब भी हम परफॉर्म करते हैं we should always check it, डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है that should be always greater than 0. बिकॉज 0 से कम रहेगा तो 0 -1 ठीक है, लेकिन 0 रहा तो क्या, इट विल गोज टू इन्फिनिटी. आपको यहाँ पे मैथ डॉट एक्सेप्शन एरर आ जाता है, एक एरर जनरेट हो जाता है इट इज 0. तो मैथ डॉट एक्सेप्शन, सिस्टम डॉट मैथ डॉट एक्सेप्शन, है ना, ऐसा एक एरर आता है यहाँ पे. सो फिर चाहे हमको अगर क्वेश्चन प्रिंट करना है तो भी हम यही चेक करेंगे, इवन दो वी वांटेड टू प्रिंट द रिमाइंडर तब भी हम यही करेंगे. ठीक है, सो दोनों सूरतों में आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू चेक कि डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, राइट. चलिए, सो यहाँ पे सिस्टम डॉट डीबग द रिमाइंडर वैल्यू आफ्टर division equals to plus. What I wanted to perform, I wanted to like bracket देने की जरूरत नहीं, I wanted to perform the mathematical mod operations in it. So I'm just directly I'm directly calling this function math dot, see these are the math is the name of a class, math एक system class है, उसमें देखो इतनी methods होती हैं. ठीक है, इतनी सारी methods होती हैं उसमें, tan cos ये सब भी आप निकाल सकते हो इसमें, सीलिंग, क्लोन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, लॉग की वैल्यू. ठीक है, वी आर कॉलिंग दिस मैथ डॉट मॉड, हम लोग तो मैथ डॉट मॉड लेने वाले ये वाला. एंड व्हेन वी टेक दिस मैथ डॉट मॉड तो देखो इसको दो, इसमें ये भी आता है कि इसका सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर यानी इस मेथड को कितने पैरामीटर्स लगते हैं. सो इफ यू आर सिलेक्टिंग दिस फंक्शन मॉड तो आपको इसके साथ में दो पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, फर्स्ट विल बी इंटीजर एक्स, दूसरा इज ऑल्सो इंटीजर वाई, मतलब दो पैरामीटर्स देने पड़ते हैं. इसके अलावा देखो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग के ऊपर करना चाहते हैं तो मैथ डॉट लॉन्ग, लॉन्ग मतलब उससे बड़ी वैल्यू, पाई मैथ डॉट पाई में से आप पाई की वैल्यूज निकाल सकते हो. तो दीज ऑल आर दी फंक्शंस ऑफ मैथ क्लास.
तो इसमें से हमको लेना है मॉड। तो मॉड में हमारे पास में दो वेरिएंट है, इधर वी कुड परफॉर्म विद द टू इंटीजर्स वैल्यू, वी कुड परफॉर्म इट विद द टू लॉन्ग वैल्यूज। ये दो लॉन्ग के लिए, दो इंटीजर के लिए, मुझे इंटीजर चाहिए। तो एक्स और वाई, वैसे भी हमारे वेरिएबल्स का नाम जो है एक्स और वाई, अगर मैं यहाँ पे नम लिखता तो मुझे यहाँ पे नम वन, और यहाँ अगर नम टू है तो यहाँ नम टू लिखना पड़ता था, दैट्स इट। यू नो, अगर मैं कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर नम वन लिखता है ना, इसको मैं अगर नम टू लिखता, नम टू, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ता था नम वन और नम, लाइक दिस, num 1 and the second will be like num 2, इस तरह से। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका डिवीजन भी हो गया। एल्स में अगेन ये सेम मैसेज, यू कुड डिवीजन कैन नॉट बी परफॉर्म, सेम मैसेज आई कुड प्रिंट इट ओवर हियर, एल्स पार्ट में भी। हाँ, यहाँ पे y की बजाय num 2 लिखना पड़ेगा मुझको, कि द वैल्यू ऑफ num 2 इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज y था पहले, अब इसलिए एरर दिखा रहा था यहाँ पे। y जो है अनआइडेंटिफाइड था, उसके लिए y क्या है, तो यहाँ पे num 2 लिखा मैंने ना, अभी एरर हट जाएगा यहाँ से, देखो हट गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल माय क्लास। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो व्हाट वी हैव ऑल दिस फंक्शंस, एडिशन which is going to accept two integer values. The second method what we are having over here is subtraction, which is again going to accept two integer values, two parameters are there. Third is multiplication. Multiplication have three parameters. ठीक है, this function, this method, not function, this procedure, this method have three functions. It accepts three functions. We have a method called as division that have two parameters. We again have a method called as remainder that accepts two parameters. ठीक है, let's now call करते हैं। Okay, so let me now show you something. So maths helper dot, ठीक है, maths helper dot. Okay, so if I wanted to perform addition, I could take this. ठीक है, num1 and num2. Let me give the value. For example, the value is like 30 and the second is 50. Again, maths helper dot. The second value here, the second, I don't know why it's not taking, but it is expected to take this. Let me copy this subtraction, or let me try. कुछ लेता है क्या? नहीं लेता है. So I'll take this. I'll take this subtraction and I paste it over here. ठीक है, I'll paste it over here. So let me now see the subtraction here. We need to give again two integers. So I'll be giving like 400 comma 200. Let me try with this only. उसके बाद में बाकी देखता हूँ one by one. So these are the results. What I have taken: 30 plus 40 is 80, and 400 minus 200 is 200. It's taking anyway. Maths helper. बाकी के क्यों नहीं बता रहा ये? Ideally what I'm expecting, I'm telling you, यहाँ पे ना जब इस तरह से डॉट दूं, ये सारी मेथड्स के नाम आ जाने चाहिए। जिस तरह से एडिशन आया था ना, द सेम वे आई एम एक्सपेक्टिंग कि सारी आ जाए। लेट मी ट्राई विद दिस, लेट मी ट्राई इट लाइक दिस। Only giving the name of this. तो फिर एक बार सारे कॉल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ। Subtraction. Let me try with the multiplication. Multiplication में तीन इंटीजर्स देने हैं मुझको, so it will be like 10 multiplied by 20 multiplied by 30. Let me try with this, and then once again first of all try with everything. नहीं दे रहा है ये। उसके बाद है डिवीजन, है ना, सो डिवीजन, लेट मी कॉपी द डिवीजन, maths dot helper dot division, and let me try to divide like 31 with 3. ठीक है, I'm going with this,
and then maths helper dot, the next is reminder में ये वैल्यूज देते हैं, यहाँ कुछ और देता हूँ, फॉर एग्जांपल 33. रिमाइंडर में लेट मी गिव दिस वैल्यू लाइक 51 कॉमा फॉर एग्जांपल 4. ठीक है. सो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि एक्चुअली आई हैव कॉल्ड डिफरेंट मेथड्स. ठीक है. और जब भी मैं कोई मेथड कॉल कर रहा हूँ, whenever I am calling any of the method, any of the procedure, say multiply या division या remainder, so along with that particular method I am giving these values. ठीक है. These are something called as parameters. इसको बोलते हैं parameters. ठीक है. And the kind of procedure, and the kind of procedure that accept these parameters, the kind of procedure that accept these methods. जैसे division क्या है, एक method है, एक procedure है, which is actually accepting these two parameters. This kind of method which accept the parameter is called as parameterized procedures. ठीक है. Let me try with this. Actually यहाँ पे help क्यों नहीं आ रही, मुझे भी नहीं पता चल रहा है ये चीज. Ideally it should listed out all the methods. ये होना चाहिए था. Ideally this should happen. But anyways it's not happening. Could be some reasons. हो सकता है इंटरनेट का इशू हो, वैसे तो होता नहीं है. तो रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज दिस वन. क्या था हमारे नंबर? द नंबर्स वेयर लाइक 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, 200 मल्टीप्लाइड बाय 36, ये बराबर है डिवीजन 11 और रिमाइंडर 3. ठीक है. ये सब तो सही काम कर रहा है. सो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल. नाउ लेट मी once try with this. But I don't understand why it's not giving the intelligence. देना चाहिए इसको, या एक ही क्यों दे रहा है ये? It's giving this only. तो सही है यार. कोडिंग में कोई मसला नहीं है, वैसे कोडिंग में कोई भी मसला नहीं है. स्टैटिक वॉइड सब्ट्रैक्शन, इट शुड आइडियली गिव, मतलब होना यही चाहिए. बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट्स नॉट गिविंग. दिस शुड आइडियली हैपन, दिस शुड आइडियली हैपन कि इट शुड लिस्टेड आउट एवरी नेम ऑफ एवरी मेथड. यहाँ पे सारी मेथड्स के नाम आना चाहिए. दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे एडिशन आए या सब्ट्रैक्शन आए. दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. एनीवेज चलो, हो सकता है कोई और वजह होगी इसकी. सो दिस वाज दिस इज हाउ यू एक्चुअली राइट डाउन procedures with the parameters. Procedure क्यों? Because it is void. Procedures with the parameter. Let me try with one more example. ठीक है. और एक एग्जांपल, जैसे ये तो हो गया इसका. अब मैं एक स्ट्रिंग वाला एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, वो भी. फिर देन आई हैव फ्यू ऑफ द असाइनमेंट्स फॉर यू आल्सो. तो स्ट्रिंग्स के ऊपर में अगर कुछ करना है तो लेट मी ट्राई टू क्रिएट अ क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ट्राई टू क्रिएट अ क्लास. एक नया क्लास बनाता हूं, जैसे कि मान के चलो स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल ऑपरेशन हेल्पर. ठीक है. स्ट्रिंग ऑपरेशन हेल्पर नाम से क्लास क्रिएट करता हूं. पब्लिक क्लास स्ट्रिंग हेल्पर. एंड देन हियर आई विल परफॉर्मिंग फ्यू ऑफ द ऑपरेशंस रिलेटेड टू द स्ट्रिंग पार्ट. ठीक है. स्ट्रिंग से ऊपर में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्रिएट अ पब्लिक स्टैटिक and void. ठीक है. public static and void any method. For example, first concatenation concatenation. ठीक है. तो concatenation is a method, it's a procedure, but it's a parameterized procedure. What it is accepting? It is accepting, for example, two string for example s1 and then string s2. What it will be doing? It will be concatenating. जैसे आपने लिखा hello world, तो वो हेलो अलग वर्ल्ड अलग था, लेकिन जब ये इसको प्रिंट करेगा, व्हेन इट विल बी प्रिंटिंग, तो ये दोनों को हेलो वर्ल्ड मिला के प्रिंट करेगा. तो उसके लिए मैं देता हूं सिस्टम डॉट डीबग concatenation result equals to plus what I wanted to print like s1 plus s2. S1 plus S2. This is the concatenation result.
तो प्लस ऑपरेटर जो है अपना, प्लस ऑपरेटर अगर आप इसको इंटीजर्स के साथ या लॉन्ग के साथ यूज कर रहे हो तो ये एडिशन परफॉर्म करता है, अगर आप इसको स्ट्रिंग के साथ यूज करते हो तो ये कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करके देता है। ये हमने डिस्कस किया था उस वक्त, एग्जाम्पल मुझे याद नहीं हमने लिए थे कि नहीं लिए थे, बट दैट टाइम वी हैव डिस्कस दिस। चलिए नेक्स्ट, अभी पूरा क्लास टाइप कर लेता हूँ फिर समझा के देता हूँ। सो पब्लिक, दूसरा कोई, जैसे कि स्ट्रिंग का लेंथ अगर मुझे पता करना है तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इतना तो सब में कॉमन है। इसके बाद में आपको कोई मेथड का नाम देना है, तो जैसे कि गेट, एक नेमिंग कन्वेंशन सिखाता हूं आज सभी लोगों को, ध्यान से सुनो। एक नेमिंग कन्वेंशन सिखा रहा हूं, पहले आप देखो कि मैं इस मेथड का नाम कैसा लिख रहा हूं। अब ये जो नेमिंग कन्वेंशन दिया मैंने, इसको समझो। नॉर्मली रियल टाइम पे, रियल टाइम पे जब भी हम लोग कोई मेथड का नाम या क्लास का नाम देते हैं, ठीक है, तो वी व्हाट वी यूजुअली डू इज लाइक के उसका सबसे पहला जो कैरेक्टर है ना उसको स्मॉल केस रखते हैं। उसके बाद अभी जैसे गेट स्ट्रिंग लेंथ, ये तीन अलग अलग चीजें थी, इसको मिला के ही मैं दे सकता हूँ। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसके बाद स्ट्रिंग का एस कैपिटल रखूंगा और लेंथ का एल कैपिटल, और मेथड का जो पहला नाम होता है वो यूजुअली हमेशा स्मॉल रहता है। अब ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ना मैंने देखा है 90% केसेस में ऐसा ही रहता है। 90% केसेस में दूसरे भी प्रोग्रामर्स जो है ना वो ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं। इसके पीछे का रीजन मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये दिस एक्चुअली इज समथिंग विच वी आर वेरी यूज टू, है ना। तो हमने देखा है ऐसा, और इसीलिए आप भी ना ये कन्वेंशन फॉलो करो, बिकॉज ये चलता है, ऐसा देखा है। और इसकी प्रैक्टिस रहेगी तो तुमको भी कुछ अनोखा नहीं लगेगा, या तुम भी देखोगे तो तुमको कुछ नया नहीं लगेगा, तुम्हारे कोड को कोई देखेगा तो उसको भी कुछ अटपटा सा नहीं लगता है। ठीक है, चलो। तो यहां पर मैंने एक मेथड डिफाइन करनी है, स्ट्रिंग लेंथ। कि अगर इसमें एक ही स्ट्रिंग दूंगा मैं, कि अगर मैं कोई एक स्ट्रिंग देता हूं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग S1, उसमें कितने नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स है उसका लेंथ हमको रिटर्न करो, तो उसमें नंबर कितने, तो इसके लिए एक फंक्शन होता है, डायरेक्ट फंक्शन है, इसमें सब कुछ रेडीमेड है, पता है। इसके लिए सी पे कोडिंग लिखनी पड़ती है, C++ में, जावा में कोड लिखना पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्टली मेथड है, इसकी डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, बताता हूँ मैं। तो LENG द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल्स टू प्लस, ठीक है। इसकी एक मेथड है str इज द नेम ऑफ क्लास डॉट, ठीक है, str इज द नेम ऑफ क्लास, ठीक है, डॉट str इज द नेम ऑफ क्लास। क्यों नहीं ले रहा है आज, लगता है मेरा इंटेलिजेंस काम ही नहीं कर रहा है। एनीवे, str लेंथ, ठीक है, नहीं S1 देके देना पड़ेगा, str नहीं, S1 डॉट आएगा शायद, एक सेकेंड रुको, S1 डॉट, हाँ S1 डॉट, स्ट्रिंग नहीं है वो, S1 डॉट है। अभी S1 डॉट ये सारी मेथड्स है, स्ट्रिंग से रिलेटेड ये सारी मेथड्स, एंड विथ इक्वल्स टू, है ना, ये सारी मेथड है स्ट्रिंग्स की, ठीक है। तो जैसी एक्चुअली str ही है उसका, लेकिन क्या होता है कि जैसे आप स्ट्रिंग डिफाइन करते हो तो ये अपने आप ले लेता है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ये मेथड, देखो स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ये मेथड यूज करूंगा, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ। तो ये एक ऐसी मेथड है, इतनी सारी मेथड्स है, लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग जो होती है ना, अगर पीछे से कैरेक्टर्स को कम करना है तो उसके लिए होता है ये, ठीक है। अब ये मेथड मैं यूज करने वाला हूँ। तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, देखो कभी भी कोई मेथड यूज करो ना तो उसका सिग्नेचर्स क्या है, इसमें तो कोई पैरामीटर है नहीं, पैरामीटर मतलब सिग्नेचर, जैसे यहाँ पे इसके अंदर पैरामीटर है इंटीजर लेंथ वगैरह, लेकिन इसका रिटर्न टाइप क्या है वो भी देख लो। तो इससे धीरे धीरे करके आप इस तरह से देखना सीखोगे ना तो आपको मेथड्स के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। जैसे एक मेथड है लेंथ नाम की, इसका कोई पैरामीटर है क्या, क्या ये कुछ इनपुट ले रही है, क्या नहीं ले रही है, ओके नहीं ले रही है। इसका रिटर्न टाइप क्या है, इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। किसका इंटीजर, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ। जैसे मान के चलो कि आपकी स्ट्रिंग में 10 कैरेक्टर है, तो इस स्ट्रिंग का जो भी लेंथ है उसको एज अ इंटीजर फॉर्म में ये रिटर्न करने वाली है, इसका रिटर्न टाइप रहेगा 10, ठीक है। जैसे आपने एक स्ट्रिंग दिया वेलकम, अब वेलकम में कितने नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स है उसको ये रिटर्न करेगा, तो ये होता है हमेशा रिटर्न टाइप। जैसे यहाँ रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, अगर आप ये देते हो तो इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, ये आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है, स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है, ये भी स्ट्रिंग, लेकिन ये जो है ये लेंथ जो मेथड है ये स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करेगा, ये इंटीजर रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न टाइप बोलते हैं। तो ना ये थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे ना आप सीखना शुरू करो इसको, कि अगर मैं कोई भी मेथड, रेडीमेड है सारी, मैक्सिमम तो रेडीमेड ही मेथड है, तो वो मेथड क्या है, मेथड के कोई पैरामीटर्स होते हैं क्या, मेथड में मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, वो सारी चीजें तो इस तरह से देखते चलोगे ना तो आगे चल के बहुत आसानी होती है मेथड्स यूज करने की। तो हम लोग यहाँ पे जो है S1 की लेंथ मांग रहे हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट, और मैं क्या कर सकता हूं, मैं चेक कर सकता हूं दो स्ट्रिंग डाल के कि वेदर टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट। तो उसमें भी दो कंपैरिजन होते हैं, बाइनरी और वो। सो देख लेते हैं। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और जैसे कि मान के चलो चेक इक्वल सी चेक इक्वल्स नाम से एक मेथड डिफाइन करता हूं। इस मेथड को मैं दो स्ट्रिंग दूंगा, स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल s1 कॉमा स्ट्रिंग s2, एंड आई विल बी सीइंग कि वेदर दीज टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट। ठीक है, इसको मैंने दो पैरामीटर्स दे दिए और मैं ये चेक करना है मुझको कि वेदर द टू स्ट्रिंग्स व्हाट वी आर गोइंग टू एंटर वो दोनों सेम है कि नहीं, दोनों जो है वो सेम है कि नहीं। तो इसके लिए दो तरीके होते हैं, मतलब एक तो हम नॉर्मल जो टेक्स्ट कंपैरिजन है, टेक्स्ट कंपैरिजन और बाइनरी कंपैरिजन दोनों देखेंगे। टेक्स्ट कंपैरिजन और बाइनरी कंपैरिजन दोनों। तो पहला टेक्स्ट कंपैरिजन, तो पहले टेक्स्ट कंपैरिजन में कि मैं देखता हूं कि इफ लाइक एग्जांपल s1 इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं टेक्स्ट कंपैरिजन, इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो वी विल बी प्रिंटिंग सिस्टम डॉट डीबग के बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम, बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स वी विल बी प्रिंटिंग दैट बोथ स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। तो सिस्टम डॉट डीबग बोथ स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। अब एक चीज समझो, बाइनरी कंपैरिजन और टेक्स्ट कंपैरिजन के बीच का फर्क क्या है अभी आपको दिख जाएगा, ये जब मेथड करूंगा एग्जीक्यूट तब दिख जाएगा। मैंने बताया था वैसे, काफी पहले की बात है। यहाँ पर आपका कैरेक्टर्स कंपेयर होते हैं और वहां पे आस्की वैल्यूज। अभी जो सेकंड इसके बाद मेथड बनाता हूँ, एक मेथड और बना लेता हूँ इस चीज के लिए। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इतना तो हर बार देना आपको। इस मेथड का नाम रखते हैं के चेक इक्वल्स विथ केस, मतलब केस इन द सेंस वो क्या है, वो अपर केस है लोअर केस है, ये कहने का मतलब मेरा। स्ट्रिंग अगेन टू स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग s1 और दूसरा देता हूं मैं स्ट्रिंग से s2। ठीक है, दो स्ट्रिंग दी मैंने, यहां पर भी दो स्ट्रिंग दिया है, यहां पर भी दो स्ट्रिंग्स दिया। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इफ s1 इक्वल्स टू s2 यानी इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज कर रहा था, तो ऑपरेटर विल गिव यू द टेक्स्ट कंपैरिजन टू ऑब्टेन द बाइनरी कंपैरिजन। कंपैरिजन कभी कभी ना मैं एकदम ही ब्लैंक हो जाता हूँ। बाइनरी कंपैरिजन के लिए एक मेथड होती है। ठीक है, जैसे डिवीजन के लिए आपको दो चीजें बताई मैंने, एक तो स्लैश ऑपरेटर जो आपको क्वेश्चन देता है, और मैथ डॉट मॉड, ये क्या है, मेथड है, फंक्शन है। ये क्या रिटर्न करता है आपको, दिस विल रिटर्न व्हाट, दिस विल रिटर्न द रिमाइंडर, वो फंक्शन है। देखो वो जो भी रिटर्न कर रहा है वो रिमाइंडर होता है। जैसे यहाँ पे लेंथ है, ये क्या है, ये एक फंक्शन है एक्चुअली, ये एक फंक्शन है क्योंकि ये आपको इंटीजर रिटर्न करता है, ये आपको इंटीजर रिटर्न करता है। तो ऐसी कोई भी मेथड जो आपको कुछ रिटर्न करती है ना, ऐसी कोई भी मेथड, जैसे ये लेंथ एक मेथड है, क्या रिटर्न करती है, इंटीजर। तो जब भी कोई चीज रिटर्न करती है उसको फंक्शन बोलते हैं। तो लेंथ को आप यहाँ पे फंक्शन बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न करता है। इसी तरह से एक मेथड है यहाँ पर, एक फंक्शन है, उसका नाम है इफ s1 डॉट इक्वल्स, ये वाली। ठीक है, s1 डॉट इक्वल्स ये, तो ये जो पहली मेथड है ये यूज करूंगा। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन, मतलब ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती है। तो ये भी एक फंक्शन है, जहां मुझे दूसरी स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। दूसरी स्ट्रिंग है मेरी s2, s1 डॉट इक्वल्स s2। तो यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और कंपैरिजन करने के बाद अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो मैं यहां पर आऊंगा इस ब्लॉक में। अगर ट्रू रिटर्न करता है, इफ द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू,
ठीक है, अगर मैं ट्रू रिटर्न करता हूं तो मैं यहां पर, ठीक है, एल्स एल्स इफ द फंक्शन रिटर्न्स फॉल्स, अगर फॉल्स है तो आप यहाँ पे, अब देखो ये बेसिकली कैसा इक्वल्स क्या एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है बूलियन, जैसे आपको बताया मैं कि हमेशा कभी भी रिटर्न टाइप याद से देखना, S1 डॉट क्या देख रहे हो आप, इक्वल्स मेथड देख रहे हो, इक्वल्स क्या एक मेथड है, इसका रिटर्न टाइप क्या है बूलियन, बूलियन वैल्यू मतलब क्या हो सकता है ट्रू और फॉल्स, तो अगर मैं ये मेथड ये फंक्शन यूज करता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू, तो S1 इक्वल्स टू वॉट, S1 को किसके साथ कंपेयर करना है, मुझे S1 को S2 के साथ कंपेयर करना है, S1 इक्वल्स टू देख रहे हो ना आप यहाँ पे, तो S1 को S2 के साथ कंपेयर करना है, तो ये जो मेथड है आपकी, ये जो फंक्शन है आपका, ये क्या रिटर्न करता है, ये बूलियन, बूलियन की दो ही वैल्यू सकती है, ट्रू या फॉल्स, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, S1 इक्वल्स टू S2 ट्रू रिटर्न करता है, तो इसका सीधा साधा मतलब यही होता है, इसका सीधा साधा मतलब यही होता है कि सिस्टम डॉट डीबग बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, अगर ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब यही होता है कि बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो सीधा मतलब कि दोनों स्ट्रिंग्स आपकी अलग है, दोनों जो स्ट्रिंग्स है आपकी वो अलग है, अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग जो है आपकी वो अलग है, ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है। अभी आपको यहाँ पे मेनली जो है प्रोबेबली आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इक्वल्स टू फंक्शन में यानी टेक्स्ट कंपैरिजन में और बाइनरी कंपैरिजन के बीच में फर्क क्या होता है, ठीक है, आओ देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है स्ट्रिंग ऑपरेशन हेल्पर नाम से, लेट मी ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस क्लास। देखो ये चीज थी जो मैं वहां पे एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे नहीं पता वहां पे क्यों नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे आपके ना, जैसे ही मैंने स्ट्रिंग ऑपरेशन हेल्पर ये क्लास का नाम डाल के डॉट डाला, तो यहाँ पर ना मेरे को सारी मेथड्स नजर आ जा रही है उसकी, सारी मेथड्स, मतलब इसमें एक मेथड है जिसका नाम है कॉन्कैटिनेशन, ये रहा, दूसरी मेथड का नाम है आपका गेट स्ट्रिंग लेंथ, तो वो आ जा रही, तीसरा है चेक इक्वल्स, वो आ जा रहा, चेक इक्वल्स विथ, है ना, सारी मेथड्स आ जा रही है यहाँ पे आपको, तो ये एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, वहां पे इस प्रोग्राम पे ना मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आती है, पर शायद मेरे इंटरनेट की वजह से या किसी और वजह से हो सकता है कि किसी और वजह से ये उस वक्त नहीं नजर आ रही होगी, बट ये बेसिकली ये होता है कि आपने जितनी भी मेथड स्टैटिक वॉइड बनाई वो सारी डिस्प्ले होती है, तो वन बाय वन करते हैं, जैसे मुझे सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन करना है, तो कॉन्कैटिनेशन दो स्ट्रिंग्स देनी पड़ेगी, ठीक है, दो स्ट्रिंग्स, तो वेन एवर वी गिव द स्ट्रिंग हम जब भी देते हैं, ठीक है, तो कहीं पर भी दें तो आपको स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना है, मतलब दोनों स्ट्रिंग जो आप दोगे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो फॉर एग्जांपल वी वांटेड टू कॉन्कैटिनेट लाइक हेलो वर्ड लाइक दिस, ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज लाइक स्ट्रिंग हेल्पर डॉट कॉन्कैटिनेशन के बाद में से अगला गेट स्ट्रिंग लेंथ, इसमें आपको एक ही स्ट्रिंग देनी है, S1 एक ही स्ट्रिंग देनी है, एक सिंगल स्ट्रिंग दे दीजिए आप, वेलकम, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इज लाइक डॉट चेक इक्वल्स, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आप अभी इसका अंतर समझो, अभी आपको बेसिकली डिफरेंस समझ आएगा कि बाइनरी कंपैरिजन और टेक्स्ट कंपैरिजन के बीच में फर्क क्या है, ठीक है, सो मैं दो स्ट्रिंग देता हूं जैसे कि HELLO, ठीक है, और यहां पे देता हूं HELLO, कैरेक्टर वाइज दोनों सेम है, बट ये है कि ये कैप्स में है और ये आपका स्मॉल केस अपर केस का फर्क है, ठीक है, टेक्स्ट कंपैरिजन जो आपका होता है, टेक्स्ट कंपैरिजन ये वाला S1 इक्वल्स टू X2, इट विल से कि ये दोनों स्ट्रिंग सेम है, जब ये आप दोगे ना, तो नेक्स्ट भी बता देता हूं, डॉट चेक्स इक्वल विद द केसेस, ना हियर आल्सो मैं सेम स्ट्रिंग देता हूं, क्या रिजल्ट आने वाला वो मैं बता देता हूं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली ये दो चीजें क्या अलग अलग काम करती हैं। देखो अगर आप ये यूज करते हो, कुछ किया क्या मैंने यहाँ पे, अच्छा, अगर आप इक्वल्स टू फंक्शन यूज करते हो, मतलब ये आपका चेक इक्वल्स, इस फंक्शन की नाम इसकी बात कर रहा हूं,
तो ये बेसिकली क्या करता है, कैरेक्टर को कैरेक्टर से कंपेयर करता है। कैरेक्टर को कैरेक्टर मतलब ये भी एच है और ये भी एच है। अब भले वो स्मॉल केस है अपर केस है, उसके हिसाब से वो नहीं, उसने क्या देखना है कि ये भी पहली पोजीशन पे यहाँ एच है, यहाँ भी पहली पोजीशन पे एच है, तो ये सेम हो गया। फिर वो देखेगा यहाँ पे ई है, यहाँ पर भी ई है, तो भी सेम हो गया। फिर एल एल ओ एल, उसके बाद एल, उसके बाद ओ। तो ये क्या करता है, इक्वल्स टू यानी टेक्स्ट कंपैरिजन, ये क्या करता है, कैरेक्टर को कैरेक्टर के साथ कंपेयर करता है। तो ये क्या बोलेगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे रिजल्ट आएगा बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, यहाँ इसके लिए रिजल्ट आएगा आपको कि बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, दोनों सेम है। अब यही चीज, यही दोनों स्ट्रिंग जब आप इसको बाइनरी फंक्शन को देते हो, बाइनरी कंपैरिजन को देते हो इक्वल्स को, तो वो क्या देखेगा, ये इसकी आस्की उठाएगा, स्मॉल एच की आस्की, और उसको पहला कैरेक्टर जो कैपिटल एच की आस्की उससे कंपेयर करेगा। अगर चलो इसको मैं काम करता हूं, जैसे इसको मैं पहला एच कर देता हूं कैपिटल, तो यहां पे ना कैपिटल एच की आस्की, कैपिटल एच की आस्की, ये तो मैच हो जाएगी। सेकंड कैरेक्टर के लिए ई का आस्की, स्मॉल ई का और कैपिटल ई का आस्की में डिफरेंस रहेगा। तो ये क्या बोलेगा कि बोथ स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट यहाँ पे। तो आपको इस तरह से रिजल्ट आने वाला है। अभी कैसे रिजल्ट आए, कॉन्कैटिनेशन हेलो वर्ल्ड, हेलो के साथ में मिलके वर्ल्ड, और स्ट्रिंग लेंथ, इसकी जो भी स्ट्रिंग लेंथ होगी वो आपको दे देगा। यहाँ पर तीसरा आपको मिलेगा बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम, और चौथा मिलेगा बोथ स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। ऐसा रिजल्ट मिलने वाला है अभी दीपक ओनली। देखो, हेलो वर्ल्ड कॉन्कैटिनेट होके स्ट्रिंग है 7, बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम, बोथ स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। ये होता है टेक्स्ट कंपैरिजन और बाइनरी कंपैरिजन के बीच का फर्क। तो अगर आप इक्वल्स टू ऑपरेटर लेते हो, आपको टेक्स्ट कंपैरिजन मिलता है, और अगर आप इक्वल्स फंक्शन यूज करते हैं तो आपको बाइनरी कंपैरिजन मिलता है, जो आस्की कंपेयर करता है। तो वहां पर आपका दो स्ट्रिंग जो है वो अलग आ रही है, ऐसा है। तो ये बेसिकली इसका डिफरेंस है, ठीक है। और ये होते हैं आपके पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। चलो, सो टुडे वी विल एंड अप ओवर हियर, एंड देन कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे इसके साथ, मतलब ये भी है, जो दो एग्जांपल किया मैंने वो भी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला भी है यहाँ पे, स्ट्रिंग वाला भी है। अब यहां से आपको करना है, मतलब यहां से आप सॉल्व करें, हायरिंग मैनेजर को बाय क्रिएटिंग द हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड क्रिएट करना है बाय पासिंग द वैल्यूज। तो जैसे नेम, लोकेशन, कॉन्टैक्ट और एचआर ईमेल आईडी, ये चार वैल्यूज जो है, एचआर नेम, सिटी, ईमेल, सब आपको रन टाइम पे पास करनी है। तो ये तो सॉल्व एग्जांपल है, इसलिए इसके साथ दिक्कत नहीं जाएगी। उसी से रिलेटेड एक पोजीशन भी क्रिएट करना है, तो वो भी सॉल्व है। उसके बाद कुछ असाइनमेंट्स है, ये 3 असाइनमेंट और 3 पहले के, ऐसे 6 क्वेश्चन है, इस पे सॉल्व कर लो। कल से मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कलेक्शन, ठीक है। कल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कलेक्शंस। चलो।